Good morning, everyone. Today we are going to start some further topics that are related to current, electricity, and this first content is current density. So, what is current density? It is simply means the density of current. As we have studied in the definition of current, it was the flow of charge carriers or flow of electrons uh, passing through any cross sectional area or per unit time. So that is Q by T. But in that case, we have considered any cross sectional area, and here we are considering the per unit cross sectional area. So it is the basic difference. जब हम करंट पढ़ रहे थे, then we are considering the total charge carriers passing through any cross sectional area, but in current density we will study the current or the charge carriers passing through unit cross sectional area. So the definition is current density at a point, current density at a point in a conductor is defined as the amount of current flowing per unit area of the conductor around that point, provided the area is held in a direction normal to the current. Very important thing, this line is very important, in a direction normal to the current. It means in this quantity direction is decided. It is the actually we are considering the area through which current is measured, or the cross sectional area. It is should be normal to the current. So here we are defining the direction, so this will be a vector quantity. All right, it is very important. Now for visualization we can assume a current considering this a conductor in which current is passing through. It is a conductor. We have to consider a cylindrical conductor. We have to consider unit cross sectional area. So for this, consider this area which is a circle. In this current is passing through. Consider this area to be capital A, and this direction, actually we are considering the cross sectional area, and because area is a vector quantity with vector direction normal to the surface of this area, so this will be the area vector. You have studied it in class 10th, area vector. So the current is along the direction of area vector or perpendicular to the cross sectional area. So the current density will be, it is denoted by
capital J. All right, so this current density J will be, if I say current I is passing through, then I current किस में से पास हो रही है? It is passing through this total area A. So the current per unit area will be I by A. All right, so this will be, actually the current can be written as Q by T, the T time, in T time Q charges is passing through this cross sectional area. How much area? A area. So the per unit current will be I by A. So this is our current density J. Now it is impractical to consider that it is always perpendicular. Sometimes this current and this cross sectional area is not perpendicular. If I say this cross sectional area is not perpendicular, it is inclined like this. So the area vector will be this direction and the current flow is in this direction. The angle between area vector and current flow, we are considering this angle to be, if I say theta, so this angle is theta. If this cross sectional area is inclined with angle theta, then this perpendicular component will be, or the normal component will be this much only. ऐसा होगा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का एरिया वेक्टर किधर होगा? करंट की दिशा में, और उसकी वैल्यू क्या होगी? ए, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, यानी कंपोनेंट ले लिया हमने उसके अलोंग. हियर वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, that the area considered should be that area which is circumscribing that particular point, यानी उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम करंट लेना चाहते हैं उसके थ्रू उसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ हो. ठीक है, तो ये हो गया. नाउ वी हैव टू मेक द एक्सप्रेशन फॉर दिस. सो वी हैव टू कंसिडर फॉर inclined surface area. For this it should be I by A, normal component. An क्या है? Normal component of that A. So it could be written as A cos theta, or it is our required current density. All right, now since we have studied that the current is actually a scalar quantity, but here we know that we have defined the direction of that particular current. So or the current density, it is always normal to the cross sectional area, or we can say it should be along the direction of current. ऑल राइट, सो या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने ये डिफाइन किया है कि जो करंट की दिशा है उसके परपेंडिकुलर ही हमेशा हमें क्या लेना होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो एक डिफाइंड डायरेक्शन है. दैट इज़ वाई वी कैन से दैट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सो करंट डेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. करंट density is a vector quantity. All right, now next is there should be some relations also for solving the questions. So first relation is relation between current density and drift velocity. Relation between current density, that is capital J, and drift velocity,
that is V small d. It should be in suffix. Now for this we can easily solve it, as we know I, the current is NEAVD. ये हमने पीछे पढ़ा, it is equation 1. Current is I equals to NEAVD. So current density will be, it is actually current density will be I by A. So it is NEAVD by A. A is the cross sectional area. So it is NEVD only. Alright. So this is our required relation, J equals to NEVD. It is the relation between current density and drift velocity. Now what is the unit of current density? SI unit. So SI unit of current density, unit of current density क्या होगी? करंट पर यूनिट एरिया ओनली. सो दिस विल बी एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, और वी कैन से एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ऑलराइट, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज ऑल about current density. All right, now one more thing is there. अगर मान लीजिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको भी देख लेते हैं. अगर ये जो हमें किसी सरफेस के लिए, किसी बड़े सरफेस के लिए, मान लीजिए इस सरफेस के लिए हमें करंट डेंसिटी पता है, J is given. If J is, we know it is a vector quantity, then I am writing it in vector form. So we have to consider the current for this whole surface area, current passing through this whole surface area. It is very easy. Consider very small element, एक छोटा एलिमेंट ds ले लीजिए. अब आपको पता है J is equals to I by the area. ये हमने ds एक एरिया एलिमेंट लिया. क्या है ये? एरिया एलिमेंट. ठीक है. अब एरिया एलिमेंट लिया है तो करंट I कैन बी रिटन एज, यानी छोटा सा जो I इस छोटे एरिया से पास करेगा, यहाँ देखिएगा DI इज इक्वल्स टू J डॉट DS. देखिए डॉट प्रोडक्ट है, एरिया वेक्टर, DS एक वेक्टर क्वांटिटी होगा ना एरिया का, हम वेक्टर लेते हैं क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो J डॉट DS और ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? एक स्केलर. और करंट क्या होता है? एक स्केलर. ये DI एक छोटी करंट है, DI एक साथ लिखा है, D और I अलग अलग नहीं है. ठीक है, J डॉट DS. सो फॉर होल सरफेस क्या लिख सकते हैं? टोटल करंट I इज इक्वल टू, और I स्केलर है, इंटीग्रल कौन सा? सरफेस इंटीग्रल J डॉट DS. ये एक्सप्रेशन हमारा सरफेस के लिए हो सकता है. कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें एरिया वेक्टर दिया होता है, एरिया क्वांटिटी दी हुई होती है, करंट डेंसिटी, देन वी हैव टू कैलकुलेट द करंट. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कंडक्टेंस. ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या चीज़ है? कंडक्टेंस कुछ खास नहीं है. जैसे रेजिस्टेंस किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन करता है, कंडक्टेंस ये बताता है कि कौन मटेरियल कितना अच्छा करंट को, कौन कंडक्टर कितना अच्छा करंट को पास कर सकता है. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इट इज़ द मेजर ऑफ ईज, कितना आसानी से, विद विच द चार्जेस
flow through the conductor all right, you can write it like this. One more thing, it is equal to the inverse of its रेजिस्टेंस. अगर किसी के कंडक्टर का आपको रेजिस्टेंस पता है then we can calculate this. It is denoted by capital G. All right. So G is equals to 1 by R. इसमें कुछ खास नहीं, बस आपको इतना ही जानना है. यूनिट SI यूनिट is ओम इनवर्स, और ओम को उल्टा कर दो म्हो, MHO. ऑल राइट. और वन मोर नेम इज गिवन टू इट, दैट इज सीमेन, SIEMEN, सीमेन. symbol is S. So it is actually the name of that SI unit. It is the representation, that is ohm inverse, and it is also written as mho. Alright, so you can use any of these SI units. Now next is electrical conductivity. As we have studied here about electrical conductance, जैसे हमने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा वैसे ही कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्टिविटी और द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट क्वांटिटी, रेजिस्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is defined as the reciprocal of its whose the material whose resistivity. ये अब किसी कंडक्टर की ना हो के ये मटीरियल की होती है. ये तो आपको पता ही है, जैसे रेजिस्टिविटी मटीरियल की होती है क्योंकि वो लेंथ ब्रेड्थ पे डिपेंड नहीं करती. इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल सिग्मा. इट इज ऑल्सो सिग्मा. ऑल राइट. नाउ सिग्मा कैन बी रिटन एज 1 बाई रेजिस्टिविटी और रो. ये क्या है, रो है ना, RHO, रो. Now SI unit of conductivity is what? देखो इसकी होती थी ओम मीटर, तो इसकी होगी ओम का इन्वर्स मीटर का इन्वर्स. देखिए ये ओम एक साथ है, OHM अलग नहीं है. ओम मीटर इन्वर्स, ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. और ओम इन्वर्स का क्या होता है, मो, और मीटर इन्वर्स तो मीटर इन्वर्स ही रहेगा. ये भी लिख सकते हैं इसको. एक ये हो गई, एक ये हो गई. इसी तरह इसको अब देखो मो को हम सीमेंस भी लिखते हैं ना, तो सीमेन मीटर इन्वर्स भी इसकी क्या होती है, SI यूनिट होती है. ठीक है, तो ये क्वांटिटी हो गई. नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो इट इज़ एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ दैट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी. डायमेंशनल फॉर्मूला आप रिवाइज करेंगे देन यू विल गेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रो. सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाई रो. सो इट कैन बी रिटन एज, अगर हम उसको उल्टा कर दें तो एक्चुअली याद तो मुझे भी नहीं है, तो एक काम करते हैं तुरंत निकाल लेते हैं. रो था m/n² टाउ, तो उल्टा कर लेते हैं.
ये बन गया n स्क्वायर टाउ बाई m, ये हो गई हमारी रेजिस्टिविटी। ये आपको फॉर्मूला पीछे मिल जाएगा, हमने डिस्कस किया था। नाउ पुट इट वन बाई वन। n इज द नंबर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या होगा L माइनस 3। इसी तरह E क्या है, चार्ज है, चार्ज Q इक्वल्स टू IT, करेंट, टाइम, और इसका कितना स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाइड इट बाय द टाइम, इट इज एक्चुअली टाउ, डिवाइडेड बाय द लेंथ, सॉरी इट इज मास, इट इज m, सो दिस विल बी m माइनस 1, L का माइनस 3, L माइनस 3, T कितने हुए, 2 1 3, और A कितने हुए, 2। सो दिस इज अवर dimension, सॉरी दिस शुड बी सिंबल। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी। नाउ कंडक्टिविटी, नाउ व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड्स अपॉन। देखिए रेजिस्टिविटी डिपेंड करता था नेचर ऑफ मटेरियल पे, तो कंडक्टिविटी भी डिपेंड किस पे करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता था टेम्परेचर ऑफ दी कंडक्टर पे, कैसे टेम्परेचर बढ़ाते थे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता था, क्यों, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन्स होते थे। और जब रिलैक्सेशन टाइम कम होता जाता है तो हमारा, चूँकि रिलैक्सेशन टाइम कम होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो हमारा ये जो आप देख पा रहे हैं टाउ सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है। टाउ कम हुआ तो सिग्मा भी कम होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ घटता है, और सिग्मा, जब टाउ घटेगा तो सिग्मा भी घटेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे नॉर्मल कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टिविटी घटती है, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस टाइप के मटेरियल्स में। ठीक है, तो इसको आप नोट्स में राइट डाउन कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट कंटेंट इज yes, some kind of relations which is usually asked in our board examinations. Now this is, first is relation between J sigma and E. ठीक है, अभी देखिए इसमें J सिग्मा और E में करने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ बेसिक रिलेशंस को लिख लेना चाहिए। फर्स्ट इज सिंस I इज इक्वल्स टू NEAVD, मैंने आपको बताया था ये कुछ रिलेशंस जो बेसिक है उन्हें याद रख लीजिए। नाउ इट कैन बी रिटन एज NEAVD की जगह EE टाउ बाई M। ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, तो ज़्यादा जल्दी और कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। सो इट कैन बी रिटन एज NE स्क्वायर A tau E divided by M. Now since hence J is equals to I by A, याद होगा आपको करंट डेंसिटी, सो कैन बी रिटन एज, जब देखिए I में से A डिवाइड कर दिया तो ये A गायब, N स्क्वायर टाउ E बाई M, डायरेक्ट A मैंने हटा दिया। So this is our relation. Now we can more simplify it. Consider this only. जो ब्रैकेट में है, ये भी मैंने आपको दिखाया था, ये क्या था, कंडक्टिविटी सिग्मा था, तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। ये है हमारा J सिग्मा और E में रिलेशन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही यहाँ पे देखिए करंट डेंसिटी है, वोल्टेज की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू V बाई एल, याद होगा वोल्टेज पर यूनिट लेंथ जो भी कुछ है ना। तो यहाँ पे वही डेंसिटी है, पोटेंशियल डेंसिटी आप कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सिग्मा क्या काम कर रहा है, 1 बाई रो, यानी यहाँ रेजिस्टेंस भी है, वोल्टेज भी है और करंट भी है। तो ये अब देखिए, चूँकि ये हम लिख सकते हैं करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, सिग्मा एक स्केलर क्वांटिटी है, E एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज कॉल्ड, इट इज वेक्टर, इसको एक नाम और देते हैं, और माइक्रोस्कोपिक। मैंने आपको बताया था अब हम सारी स्टडी क्या कर रहे हैं,
माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कर रहे हैं, चार्ज कैरियर्स लेवल पे। वेक्टर और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, हमेशा ही ओम्स लॉ में यहीं से इसको प्रूव करने को बोला जाता है कि derive the vector form of Ohm's law. Then you have to start it using the current density definition, write about the current definition, write about the drift velocity, then write about the current density, and this will be your relation. Then in the end write this. ठीक है, तो ये एक रिलेशन हो गया ओम्स लॉ का, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी इसको कहते हैं। वन मोर थिंग इज ऑल्सो देयर, relation between electrical resistivity and electrical mobility. It is also very easy. Now for this consider, or you can write as we know, I is equals to NEAVD. ये सबसे पहले मैं हर बार यूज़ करूँगा, इक्वेशन 1. Now as you know, as we know, relation between VD and mu, mobility and drift velocity, mu E, इक्वेशन 2. तो अब इसको रख दें I इक्वल्स टू NEA mu E. ऑलराइट, नाउ as J is equals to I by A, I is this quantity NEA mu E by A, so it is NE mu E. All right, so this is the quantity, ये तो होता है। अब ये तो J हो गया I by A का। J एक और क्वांटिटी होती है I by A, आपने देखा J इक्वल्स टू सिग्मा E था, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई रो, और E देखिए रो लाने की कोशिश कर रहे थे इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो इक्वेशन इसको 4 लिख लीजिए, इस वाली को 3 लिख लीजिए। अब देखो J ये दोनों को कंपेयर कर दो, तो NE फ्रॉम 3 and 4, NE mu E इज इक्वल्स टू E बाई रो। अब देखो रो को इधर ले जाओ, E डिवाइड कर दो, E दोनों साइड है, कट जाएगा, तो रो इज इक्वल्स टू 1 बाई NE म्यू। ये तो आपके ऊपर है, आप कैसे कर सकते हो, बट यू हैव टू लर्न ऑल दीज रिलेशंस। आपको हर रिलेशन एक दूसरे से निकालना पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये प्रैक्टिस से हो जाएगा आपका। थैंक यू।